اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین وللکافرین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد والی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم من الاجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم کفانا لشفات یدانی المقطوعتان لولدی العباس بلند ترین نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ حاضرین گرامی قدر، عزیزان محترم، آپ کی پاکیزہ سماعت کی نظر میں نے جن کلمات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس میں معصومہ کونین نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی سے سوال کیا، اے میری لاڈلی، اے میری شہزادی، ذرا یہ بتلاؤ کہ جب روز محشر نور کے ممبر سجائے جائیں گے اور مقام شفاعت پر، مسند شفاعت پر آپ کیا لے کر آؤ گی؟ تو پیغمبر کی بیٹی نے مولانا علی عباس صاحب سے اوپر تشریف، پیغمبر کی بیٹی نے ایک سوال کیا، پیغمبر نے اپنی بیٹی سے ایک سوال کیا، اے میری شہزادی، اے میری لاڈلی، ذرا یہ بتلاؤ کہ جب روز محشر نور کے ممبر سجائے جائیں گے اور مسند شفاعت لگائی جائے گی تو آپ مقام شفاعت پر اسباب شفاعت میں کیا لے کر آؤ گی؟ تو شہزادی کو کہہ دینا چاہیے تھا، بابا جس کا آپ جیسا بابا ہو کیا اسے بھی کچھ لانے کی ضرورت ہے؟ جس کا شوہر ساقی کوثر ہو کیا اسے بھی کچھ لانے کی ضرورت ہے؟ جس کے بچے جنت کے سردار ہوں کیا اسے بھی کچھ لانے کی ضرورت ہے؟ مگر نہیں، معصومہ نے کہا، اے میرے بابا، میں مقام شفاعت پر اسباب شفاعت میں اپنے بیٹے عباس کے 2 کٹے ہوئے بازو لے کر آؤں گی۔ کس نے کہا؟ میں نے مقام مصائب سے فقرہ اٹھایا، مقام فضائل میں آپ کی پاکیزہ سماعت دامن وقت کی غربت کا خیال رکھتے ہوئے بہت اختصار سے انشاءاللہ آپ سے قریب ہو کے گفتگو کر اجازت چاہوں گا۔ دیکھیے، معصومہ نے کہا، صدیقہ نے کہا، کس نے کہا؟ صدیقہ نے کہا۔ صدیقہ کس کو کہتے ہیں؟ واقعہ نہ ہو مگر اگر زبان سے کہہ دے تو واقعہ بن جائے، ورنہ بتاؤ کون لایا تھا کپڑے؟ کس نے دیے تھے کپڑے؟ کس نے لیے تھے کپڑے؟ شہزادی نے کہہ دیا تھا، میرے بچوں سو جاؤ، میرے شہزادوں سو جاؤ، کل تمہارے کپڑے تمہارا درزی لے کر آئے گا۔ یہ نہیں کہا یمن کا درزی لائے گا، یہ نہیں کہا مکے کا درزی لائے گا، یہ نہیں کہا کوفے کا درزی لائے گا، یہ نہیں کہا بصرے کا درزی لائے گا، یہ نہیں کہا بغداد کا درزی لائے گا، یہ نہیں کہا مکے کا درزی لائے گا، بلکہ دونوں شہزادوں سے پیغمبر کی بیٹی نے ایک ہی جملہ کہا، اے میرے شہزادوں سو جاؤ، کل تمہارے کپڑے تمہارا درزی لے کر آئے گا۔ شہزادی کی بات پہ یقین کر کے دونوں شہزادے بالکل ایسے ہی سو گئے جیسے شب ہجرت نبی کی بات پہ یقین کر کے علی سو گئے تھے۔ دونوں شہزادے بالکل ایسے ہی سو گئے، اور کیا کہا شہزادی نے؟ میرے لاڈلو، کل تمہارے کپڑے تمہارا درزی لائے گا۔ یہ نہیں کہا مکے کا درزی لائے گا، یہ نہیں کہا یمن کا درزی لائے گا، بلکہ شہزادی نے کیا کہا؟ کل تمہارے کپڑے تمہارا درزی لے کر آئے گا۔ شہزادی پیغام یہ دینا چاہتی ہے کہ نہ تمہارا نانا یہاں کا تھا، نہ تمہاری ماں یہاں کی ہے، نہ تمہارا بابا یہاں کا تھا، تمہارا نانا وہاں کا تھا تو اس کے لیے قرآن وہاں سے آیا، تمہارا بابا وہاں کا تھا تو اس کے لیے ذوالفقار وہاں سے آئی، تمہاری ماں وہاں کی تھی تو اس کی وجہ سے ستارہ وہاں سے آیا، تم وہاں کے ہو تو تمہارے لیے لباس بھی وہیں سے آئے گا۔ ایک صلوات پڑھیں، تھکن شکن صلوات، بلند ترین صلوات ارشاد۔ یہ جو میرے نوجوان بھائی اور بزرگ کھڑے ہیں، ان تک یہ میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے شہزادی نے کہا میرے بچوں سو جاؤ،
मासूमा किसे कहते हैं, सिद्दीक़ा किसको कहते हैं, वाक़या न हो मगर अगर ज़बान से कह दे तो वाक़या बन जाए। शहज़ादी ने कहा मेरे बच्चों सो जाओ, कल तुम्हारे कपड़े तुम्हारा दर्जी लेकर आएगा। और उसके बाद शहीद मोहसिन नकवी ने उसकी मंजर कशी की है। वो कहती है, शहीद मोहसिन नकवी कहते हैं तुम्हारा जाकिर जहां का खालिक तुम्हारे नौकर नबी रहे हैं। शहीद मोहसिन नकवी ने कहा तुम्हारा जाकिर जहां का खालिक तुम्हारे नौकर नबी रहे हैं। अज़ल से कुर्सी तुम्हारी उल्फत के जाम भर भर के पी रहे हैं। तुम्हारा दुश्मन जिए तो मुर्दा हुसैनी मर मर के जी रहे हैं। नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, थोड़ा सा बेदार रहिएगा। हुसैनी तुम्हारा दुश्मन जिए तो मुर्दा हुसैनी मर मर के जी रहे हैं। वली समझ के तुम्हारे कपड़े इरम के खैयात सी रहे हैं। वहां की चीजें यहाँ पे उतरे, ये आज से रस्म डाल दूंगी। सुबह से पहले ना आया दर्जी तो नौकरी से निकाल दूंगी। शहजादी ने कहा मेरे शहजादों सो जाओ, कल तुम्हारे कपड़े तुम्हारा दर्जी लाएगा। बस बात तमाम हो रही है। देखिए मासूमा ने कहा, किसको कहा, वो जो जबान से कह दे वाक़या ना हो वाक़या बन जाए। उसने कहा कि गाजी मेरा बेटा है, अब्बास मेरा बेटा है, अलमदार करबला मेरा बेटा है। 11 हिजरी में अब्बास को शहजादी ने अपना बेटा कहा। अब्बास कौन है, कफाना ले शिफाते यदानियल मकतूअताने, बस 4 जुमले, कफाना ले शिफाते यदानियल मकतूअताने ले वलदियल अब्बास। शहजादी ने कहा बाबा मैं मकाम शिफात पर असबाब शिफात में अपने बेटे अब्बास के 2 कटे हुए बाजू लेकर आऊं। देखिए अब्बास के बाजुओं में अल्लाह ने शिफात को रखा है, अब्बास के बाजुओं में अल्लाह ने निजात को रखा है। और देखिए गाजी उस जात का नाम है कि जो शह की भी हिफाजत करता है, मजलिस शह की भी हिफाजत करता है, जाहिर की भी हिफाजत करता है, अज़ादार की भी हिफाजत करता है। जितने लोग यहाँ तशरीफ फरमा हैं, अल्लाह इस जिक्र के सदक़े में सबको करबला बुलाएं और जाकर वो मंजर देखें जिसकी निगरानी अब्बास कर रहे हैं। अब्बास उस जात का नाम है जो शह की भी हिफाजत करे, मजलिस है शह की भी हिफाजत करे। आप मिंबर पर 2 अलम लगे हुए देखते हैं, क्यों, इसलिए कि मजलिस है शह की हिफाजत के लिए मिंबर पर 2 अलम नस्ब हैं अब्बास के हाथों की तरह। और अब्बास बाबुल हुसैन है, यानी जिसको भी हुसैन तक जाना है वो पहले बाबुल हुसैन से गुजरेगा। अज़ादार की भी हिफाजत करते हैं अब्बास और जाहिर की भी। बात तमाम हो गई, यानी घर से लेकर जाते हैं अब्बास, घर छोड़ते हैं अब्बास। भाई कितने लोग हैं जो पिछले साल करबला गए थे, का 6 करोड़ लोग, और हज करने कितने गए, 35 लाख। उन 35 लाख में तो इस्तिराब था, मगर 6 करोड़ में कोई परेशान न था, इसलिए कि घर से लेकर जाते हैं अब्बास, घर छोड़ते हैं अब्बास। बस अजीजों, यही वो अब्बास है जिसे हर मकाम पर जब जब पूछा, जिसने पूछा अब्बास को पूछा। मेरी माँ और बहनें भी सुन रही है, करबला से लेकर शाम तक जब जब पूछा, जिसने पूछा अब्बास को पूछा। जब ये काफिला शाम पहुंचा ना, लुटा हुआ काफिला, तो एक रसन है, 12 गले हैं, हाथ पसे गर्दन बंधे हुए। सुन लिया आपने, जब शाम पहुंचा, आबिद से जब वतन में किसी ने किया कलाम, गुजरे कहां पर ज्यादा सितम तुम पर या इमाम, मौला ने 3 बार कहा शाम शाम शाम। सरनंगे मेरी फुफिया थी और गिरदे खासो आम ज़ैनब का नाम लेके उदू शाद होते थे। बाबा का सर भी रोता था और हम भी रोते थे। आने वाले ने कहा मौला आपने 3 मरतबा शाम कहा, आप 1 मरतबा शाम कह देते,
मैं समझ जाता, मगर मौला आपने 3 मरतबा शाम क्यों कहा? सुनेंगे बीमार करबला ने क्या कहा? मेरे बीमार इमाम फरमाते हैं, पहली मरतबा शाम से मुराद शाम का बाजार है। घुट के नहीं, शर्म करके नहीं, बुलंद आवाज से गिरिया करना। न जाने किसके पहलू में बीमार करबला पुरसा लेने आए हो, न जाने किसके पहलू में वो बीबी पुरसा लेने आई हो जिसका दिल भी टूटा हुआ है, जिसका पहलू भी टूटा हुआ है, जिसकी कब्र भी टूटी हुई है। जन्नतुल बकी की टूटी हुई कब्र से एक बीबी रूमाल लेकर आती है। मेरी माँ और बहनें भी सुनेंगी ना, जुमला सुने। एक शख्स आया चौथे इमाम की खिदमत में और आने के बाद सवाल किया, मौला आपके बाबा बड़े साबिर थे या आपके दादा बड़े साबिर थे? मुझे नहीं मालूम किसका दिल पत्थर का है और किसका गोश्त का है, किसके अंदर कितना एहसास है। बीमार करबला ने कहा मेरे दादा अली मुर्तज़ा बड़े साबिर थे। कहा आने वाले ने कहा मौला आपके बाबा तो वो हैं जिन्होंने 71 लाशें उठाए हैं, आप कहते हैं कि मेरे दादा बड़े साबिर थे। सुनेंगे चौथे इमाम ने क्या कहा? चौथे इमाम फरमाते हैं मेरा बाबा मजलूम करबला ये चाहता था कि 2 जुल्म मेरे सामने ना हो। सुनेंगे कौन कौन सा जुल्म? शर्म करके ना रोइएगा। पहला जुल्म यह है, मेरा बाबा नहीं चाहता था कि किसी शहीद का सर हुसैन के सामने काटा जाए, लिहाजा जो शहीद कत्ल होता था हुसैन उसका लाशा लाते थे और ख़याम हुसैनी में रख देते थे। लेकिन आसमान करबला ने शाम गरीबा में पहला मंजर ये देखा कि अकबर का सर लैला के सामने जुदा कर दिया। जज़ाकल्लाह, घुट के ना रोइएगा, शर्म करके नहीं। अकबर का सर, कासिम का सर फरवा के सामने, ओनो मोहम्मद का सर ज़ैनब के सामने। सुनेंगे जुमला? पहला जुल्म यह हुआ। सुने दूसरा जुमला सुने। मौला सज्जाद कहते हैं मेरा बाबा नहीं चाहता था कि किसी बीबी की रिदा मेरे बाबा के सामने छिने। अब सुने जुमला, मगर मेरा दादा अली मुर्तज़ा इतना बड़ा साबिर था कि मेरी जद्दा ज़हरा के पहलू पे दरवाजा गिरता रहा, अली देखते रहे, मोहसिन शहीद हो गया, अली देखते रहे। जज़ाकल्लाह। अब इससे जब वतन में किसी ने किया कलाम, गुजरे कहां पर ज्यादा सितम तुम पर या इमाम, मौला ने 3 बार कहा शाम। इतनी बुलंद आवाज से रोएं कि ये आवाज शाम के जिंदान तक पहुंच जाए। 3 मरतबा शाम का। आने वाले ने कहा मौला 3 मरतबा क्यों कहा? पहली मरतबा शाम से मुराद शाम का बाजार, दूसरी मरतबा शाम का दरबार, तीसरी मरतबा शाम का जिंदान। मैंने कहा ना मुझे नहीं मालूम किसका दिल पत्थर का है, मगर अब जुमला सुनेंगे। जब ये काफिला शाम पहुंच गया ना, मेरी माँ और बहनें भी सुन रही हैं, तो एक मकाम पर पहुंचा। जब शाम पहुंचा तो शामियों ने ज़ैनब का इस्तकबाल पत्थरों से किया। कोई पत्थर सैयद सज्जाद की हथकड़ी पे आके लगा, कोई पत्थर ज़ैनब के बाजू पे आके लगा, कोई पत्थर सकीना के पेशानी पे आके लगा, और एक मकाम पर यह काफिला पहुंच गया जहां पर मालिक अश्तर की बेटी रेहाना का मकान था। रेहाना को नहीं मालूम फातिमा का चमन लुट गया, रेहाना को नहीं मालूम फातिमा का घर लुट गया। बस जैसे ही वहां काफिला पहुंचा, इसलिए कि यजीद ने कहा था घर की जितनी औरतें वो सब छतों पे सवार हो जाएं, घर के जितने मर्द हैं वो सब रास्ते में खड़े हो जाएं, और जितनी औरतें वो अपने हाथों में पत्थर ले लें। जैसे ही काफिला वहां पहुंचा जहां रेहाना का मकान था, रेहाना को नहीं मालूम फातिमा का चमन लुट गया। रेहाना के हाथ में मंजर देखे, एक एक फर्द की तवज्जो चाहता हूं। मुझे नहीं मालूम, मासूम ने फरमाया अगर आंखों से अश्क जारी ना हो तो तन्हाई में मुसल्ले पर बैठकर अपने गुनाहों की तौबा करे। ज़ैनब की असीरी पढ़ रहा हूं, रोने में कोई शर्म नहीं करना। रेहाना के हाथ में पत्थर था, बीमार करबला के हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, गले में तोखी खारदार, जंजीरों में जकड़ा हुआ मेरा लागर, मेरा नातवा, बीमार इमाम। एक मरतबा रेहाना के हाथ में जब बीमार करबला ने पत्थर देखा तो तड़प के जुमला का, मेरी माँ और बहनें भी सुन रही हैं, जुमला सुनेंगे। बीमार करबला ने जुमला का, रेहाना, घुट के नहीं, शर्म करके नहीं, रेहाना जमाने ने साथ छोड़ दिया,
क्या तुम भी हमारा साथ छोड़ दोगी? रेहाना के हाथ में पत्थर था। रेहाना ने पत्थर को अपने मकान की छत पर रखा। एक मर्तबा सहने खाना में आई। आने के बाद कनीज से कहा, कनीज मैंने जिंदगी में बहुत कैदी देखे, मगर जैसे कैदी आज देखे हैं ना, ऐसे कैदी कभी नहीं देखे। कैसे कैदी देखे? कि तुझे मालूम है ये जो मेरा नाम है ना रेहाना, मैं बहुत आहिस्ता से पढ़ रहा हूँ इसलिए कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, न जाने हमारी ज़िंदगी की आखिरी मजलिस तो नहीं है, लिहाजा पुरसे में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, कोई तकल्लुफ नहीं। कभी भी बाप ये न सोचे बराबर में बेटा बैठा है, कभी भी बेटा ये न सोचे बराबर में बाप बैठा, बल्कि ये सोचे एक कोक जुड़ी माँ रूमाल लेकर आए। जुमला सुनो। एक मर्तबा रेहाना ने कहा, देख वो जो लागर खड़ा है ना, वो जो नातवा खड़ा है ना, वो जो बीमार खड़ा है ना, इसके हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पाँव में बेड़ियाँ हैं, गले में तोखे खारदार है, जंजीरों में जकड़ा हुआ है, वो जो लागर खड़ा है ना, और ये जो मेरा नाम है, ये मेरे बाबा मालिक अश्तर ने, मेरे आका, मेरे मौला, मेरे सैयद और सरदार अली मुर्तज़ा के कहने पर मेरा नाम रेहाना रखा था। ये मेरे घर का नाम है, मगर वो जो लागर खड़ा है ना, वो कैदी मेरा नाम जानता है। जज़ाकल्लाह, वो कैदी मेरा नाम जानता है। जाकर उस कैदी से सवाल कर, वो कैदी मेरा नाम कैसे जानता। कनीज गई, जाके सलाम किया। आलम गुर्बत में शाम में पहली मर्तबा किसी ने सलाम किया, बीमार करबला ने जवाब सलाम दिया। एक बीबी है, मेरी माँ बहनों सुनो, एक बीबी है जिसके हाथ पसे गर्दन बंधे हुए हैं, नाके पे सवार है। वो बीबी रेहाना की कनीज से जैसे उसने आके सलाम किया, मौला सज्जाद से सवाल करना चाहती है, आप कौन है? एक बीबी है जो नाके पे सवार है, वो कहती है, एक कनीज जा और जाकर अपनी मालिका से कहना हमसे बाजार शाम में आके मुलाकात कर ले। घुट के नहीं, शर्म करके न रोइएगा, हमसे बाजार शाम में आके मुलाकात कर ले। कनीज गई, अपनी मालिका के पास पहुंची। पहुंचने के बाद एक जुमला का, मेरी शहजादी, वो बीवी ये कहती है कि आप बाजार शाम में आके मुलाकात कर ले। मुझे नहीं मालूम कौन सैयदजादा बैठा है, किसका दिल कितना नरम है, मगर एक जुमला सुनो जो रेहाना ने कहा। रेहाना कहती है, कनीज उस बीबी से जाके कह देना हम मदीने के सैयदों की कनीज हैं, हम बाजार शाम में नहीं आ सकते। जज़ाकल्लाह, 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 जज़ाकल्लाह। शर्म करके नहीं, कोई तकल्लुफ नहीं, तमाम हो रहे मसाइल। उस बीबी से जाके कह देना हम मदीने के सैयदों की कनीज हैं, हम बाजार शाम में नहीं आ सकते। पहुंची कनीज, जाके कहा, बीबी मेरी शहजादी कहती है हम मदीने के सैयदों की कनीज हैं, हम बाजार शाम में नहीं आ सकते। अब जुमला सुनो। वो जो बीबी नाके पे सवार है, तड़प के एक जुमला कहती है, जा और जाकर अपनी शहजादी से कह देना कि हम भी तो मदीने के रहने वाले हैं। जज़ाकल्लाह, 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 हम भी तो मदीने के रहने वाले हैं। कनीज गई, रेहाना की खिदमत में आके कहा, बीबी, वो बीबी ये कहती है हम भी तो मदीने के रहने वाले हैं। मदीने का नाम रेहाना ने शाम में सुना, रेहाना तड़प गई और तड़प के कहती है, वो बीबी मदीने की रहने वाली है, मदीने में तो मेरा आका हुसैन रहता है, मदीने में तो मेरा गाजी अब्बास, मदीने में तो मेरी शहजाद। जज़ाकल्लाह। बस तमाम हो रहे मसाइल। मदीने में तो मेरी शहजादी ज़ैनब रहती हैं। बस ये जुमला कहा, जा कनीज ये दिरहम दीनार ले जा, और लेके जाने के बाद उस सिपाही को देना जिस नाके पर वो बीबी सवार है, उस नाके की मिहार को पकड़ना, सिपाही को दिरहम दीनार देना, नाके की मिहार पकड़ के मेरी दहलीज पे ले आ। मैं ये चाहती हूँ उस बीबी से कलाम करूँ। गई कनीज, सिपाही को दिरहम दीनार दिए,
मुख्तसर कर दी मैंने रिवायत। और एक मरतबा दिरहम व दिनार देने के बाद नाक़े की मेहार को पकड़ के दहलीज पे ले आए। मेरी माओ बहनों सुनो, रोने के लिए जुमला काफ़ी नहीं है कि मालिक अश्तर की बेटी तो पर्दे के अंदर है, अली की बेटी बेपर्दा। जज़ाकल्लाह। मालिक अश्तर की बेटी घर के अंदर, अली की बेटी घर के बाहर। मालिक अश्तर की बेटी के सर पे रिदा है, अली की बेटी बेरिदा है। एक मर्तबा सलाम किया, बीबी आप पर मेरा सलाम। ज़ैनब ने जवाब सलाम दिया और जवाब सलाम देने के बाद एक मर्तबा का बीबी रेहाना कहती है, बीबी सुना ये है कि आप मदीने की रहने वाली हैं। ज़ैनब ने कहा हाँ हम मदीने के रहने वाले। बीबी मदीने में आप कौन से मोहल्ले में रहती है? ज़ैनब ने कहा मोहल्ले बनी हाशिम। बीबी मोहल्ले बनी हाशिम में आपका कौन सा घर है? अब भी कुछ पाने की ज़रूरत है। तड़प गई ज़ैनब, इसलिए कि कैसे बताए ज़ैनब कि मदीने में मेरा कौन सा घर है, इसलिए कि घर तो करबला में उजड़ गया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मगर रेहाना ने कहा बीबी मदीने में आपका कौन सा घर है? ज़ैनब ने तड़प के जवाब दिया, सुन, जब सूरज मशरिक़ से तुलू होता है और तुलू होने के बाद मंजिल उरूज पर आता है और मंजिल उरूज पर आने के बाद जब सूरज की लतीफ़ किरणें रोज़े रसूल की गुंबद पे आके गिरती है, उससे जो साया पैदा होता है, आखिरी जुमला है, मसाइब तमाम है, उससे जो साया पैदा होता है वो हमारे ही घर में तो आके गिरता है। आपने सुन लिया ना, बस ये जुमला कहना था। रेहाना के सर पे रिदा थी, रेहाना ने अपने सर से रिदा को उतारा और उतार कर एक जुमला का, बीबी क्या अब्बास की बहन लुट गई? आखिरी जुमला मसाइब तमाम, बीबी क्या अब्बास की बहन लुट गई? क्या हुसैन की बहन कैदी बन गई? एक मर्तबा रेहाना ने तड़प के कहा बीबी बीबी क्या रेहाना कहती है शहजादी ज़ैनब से, बीबी क्या अब्बास ने साथ छोड़ दिया? तमाम हो गई गुफ्तगू। बस जैसे ये जुमला क्या, एक मर्तबा ज़ैनब ने तड़प के कहा रेहाना ये जुमला ना कहना, इसलिए कि जब तक मेरा अब्बास जिंदा था किसी की क्या मजाल जो खैमों की तरफ निगाहें उठाए। अरे जब अब्बास के शाने कलम हो गए, खैमों में आग लग गई, हमारी रिदाएं छिन गई, हम कैदी बनाए गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना